Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Fa'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. कहाँ पहुंचे थे भाई? Where did we end? हाँ, अभी तक we are still talking financial needs. किधर है financial? ये बाहर हो गया था. ठीक है. Let's move on भाई. बीवियां बहुत ही सर पे चढ़ गई है ना. तीन तीन हफ्ते से चढ़ाया उन्हें सर. अच्छी बात. That's good. Number two, somebody said security. Indeed, security. Security means security, right? So, number three, fulfill emotional needs. I think we did discuss that, isn't it? Right? Emotional needs. Emotional needs, listen to them. That's what I said. उनकी बातें सुना करें. उनकी बातें सुना करें. Please, we need to listen to them. Otherwise, जो बातें नहीं सुनता ना, उसमें बहुत issues देखे गए हैं. और उनकी बातें सुने खातून समझ के, मर्द समझ के नहीं. Listen to them, considering that they are women. Because sometimes we think, you know what is he talking about? फिर वही बातें शुरू. But we need to understand that women are women. They're from Venus or Mars? They're from Venus, right? So we are from Mars. I have to understand that they are from Venus. उनकी बातें सुननी नहीं चाहिए. Irrespective of what they are. At that very time, don't try to fix them at that very moment. उस वक्त नहीं fix करना. But if they are saying something wrong, if we think, because we are, mashallah, so intelligent. So if we think that they are saying something wrong, don't fix them at that very moment, because in emotions, nobody can understand. जब जज्बाती होता है ना इंसान, उसको कुछ समझ नहीं आती है. इसलिए नबी करीम अलैहिस्सलाम said that a judge should not even give a judgment when he is upset. कि जज भी फैसला, काजी भी फैसला न करे जब वो गुस्से में हो, क्योंकि जब जज्बात होते हैं इंसान के, तो इंसान की अकल पे पर्दा पड़ जाता है. इसीलिए खवातीन को अल्लाह ताला ने नाक़िसातुल अकल कहा है. सबको पता है ना? पता है नहीं भाइयों? नाक़िसातुल अकल क्यों है? वो उनकी अकल क्यों कम है? उनकी अकल तो बड़ी ज़बरदस्त होती है कभी कभी, लेकिन असल में इसलिए कहा है क्योंकि उनके जज्बात गालिब आ जाते हैं बहुत दफ़ा. तो जब जज्बात गालिब आ जाते हैं तो फिर अकल कम हो जाती है. अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखें इस हदीस का, तो उसे पता चल जाता है कि नाक़िसातुल अकल क्यों कहा है. So women are called naqisatul aql by the Prophet sallallahu alaihi wasallam because their emotions at times overtake their intellect. So when the emotions are overtaken by intellect, you cannot think properly. So if they are emotional, when they are emotional, don't try to make them understand anything. जब उनकी जज्बाती हो, उस वक्त समझाने का कोई फायदा नहीं है. इसका यही होगा. आप टकरे मार रहे हैं किसी चीज से जिसका कोई फायदा नहीं होगा. ठीक है? समझ में आई? लेकिन if they are wrong, of course we should try to make them understand, but later, बाद में, प्यार से, मोहब्बत से, इंशाल्लाह. Please, they are emotional species, so make sure that we deal with them accordingly. Regarding their health, of course, somebody's health, to take care of their health, please. Yes, indeed. उनकी सेहत का ख्याल रखना ये हमारी जिम्मेदारी है बेहैसियत हस्बैंड्स. उनकी सेहत, उनका इलाज कराना, अगर वो बीमार हो जाएं, if they are sick, to treat them, to take care of their health, that's all our responsibility. उन सब हमारी जिम्मेदारी बनती है. अर्रिजालु क़वामून अला निसा, केयर टेकर है ना, राइट? उनके कवाम है, उनके जिम्मेदार हैं हम लोग. We are caretakers of women, so that includes their health. And one very important thing, I think I did mention or I did not mention, I'm not sure. Lekin one of the things that is so common in society is that when the wife is expecting a baby, when she's about to deliver, there are many cultures where the wife goes to her parents' house and she delivers there. ऐसा होता है आप लोगों के किसी के हैं किसी कल्चर में? राइट. कितनी ज्यादती की बात है मौलाना, है ना? यही तो वक्त था उसके साथ खड़े होने का. यही तो वक्त था उसको सपोर्ट करने का, उसकी मॉरल सपोर्ट, इमोशनल नीड्स की जब बात कर रहे हैं. शी इज गोइंग थ्रू सम एक्सट्रीम हार्मोनल चेंजेस एट दैट वेरी टाइम.
इस वक्त वो एक अजीब उसके अंदर, खातून के अंदर, उसके उनके मंथली साइकिल्स में और उनकी उनकी प्रेगनेंसी में, आप पढ़ लें बायोलॉजी जिसने पढ़ी है, गूगल पे सर्च कर लें कि दे आर गोइंग थ्रू हार्मोनल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है। ये वेरी ह्यूमन चीज़ है। कहते हो ईमान नहीं है उसके अंदर, भाई ईमान का क्या ताल्लुक है इससे? सर में दर्द हो रहा है, ईमान नहीं है? हाँ मुनीब, कैसे, कैसा ईमान है तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है यार? किधर है ईमान? कहेंगे जी ईमान का क्या ताल्लुक है मेरे सर के दर्द से? इसी तरह उसके अंदर जो ऊपर नीचे हो रहे हैं, उसका ईमान से क्या ताल्लुक है भाई? इंसान के जज्बात, वो इंसान की फितरी चीज़ है। सैयदा मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उनको विलादत होने लगी बगैर शौहर के, क्या कहा? या लैतनी मित्तु क़ब्ल हा, क्या है, मित्तु क़ब्ल हादा व कुन्तु नस्यम मनसिया। काश मैं इस दिन को देखने से पहले मर गई होती, मैं भुला चुकी, मैं कोई भूली बसरी चीज बन चुकी होती, मैं क्या हो रहा है मेरे साथ? उनसे बड़ा ईमान किसी का था नबियों के बाद? सुभान अल्लाह। There is, you know, emotions, feelings have nothing to do with iman. This is natural human thing. They are going through some hormonal changes, they are going through some, you know, some mood changes. This is was the time that the husband should have stood with her and should have supported her emotionally. और प्लस उसकी जिम्मेदारी, बच्चा मेरा बच्चा है तो उसको पैदा करने की जिम्मेदारी मेरी है कि मेरी वाइफ के वालिदैन की है? क्यों भाईजान? है ना, हमारी जिम्मेदारी है ना। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर ही इज माई किड, सो आई शुड बी सपोर्टिंग फाइनेंशियली, मॉरली, इमोशनली टू माई वाइफ। ये बहुत जुल्म है। और फिर क्या होता है, फिर वो उसके अपने माँ बाप के घर रहती है और फिर कब आती है? जब पराठे बनाने के काबिल हो जाती है। सुभान अल्लाह। जब तक बेचारी, फिर उसकी अम्मा जान उसकी खिदमत करती हैं, और जब वो काबिल हो जाती है कि जी दोबारा सफाई, पराठे, खाना पीना, तो सब वापस लाते हैं। थोड़ा अक्ल भी इस्तेमाल करें ना, लॉजिकली दीन को, कि अगर उसूलों को थोड़ी देर के लिए साइड पर रखें, कोई इंसानियत के उसूलों के तहत इस सब को, इसका इसका अगर थोड़ा एग्जामिन करें। क्या हुआ? खुद ही से बैठे बैठे इतनी अहम बातें यार। ठीक है, तो क्या मैं बात कर रहा हूँ? आई एम सेइंग इज दैट, यू नो, इट इज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हस्बैंड टू, यार इधर मैं बात कर रहा हूँ, उधर क्या देख रहे हैं? सबकी नजरें आपके पीछे वाले आपको देखने में लगी। सुनना नहीं चाहते कि अमल नहीं करना चाहते? क्या मसला है? This is serious stuff, right? If you look at it from humanity standpoint, it makes sense that we should stand by them in the time that they're expecting, that they deliver, and after their delivery. ठीक है भाइयों, बहुत ये बातें तो बहुत लंबी हो सकती हैं, लेकिन लेट्स नॉट go into the detail of all of this. Lekin please, you know, we should be the one responsible for their delivery. We should be the ones responsible for their health. We should be the ones responsible for their care. We should be the ones responsible for their emotional well-being. ये सारी हमारी जिम्मेदारी बनती है, राइट? उनकी सेहत, उनकी इमोशंस, उनके साथ खड़े होना, उनकी मदद करना, कुछ हम भी खिदमत कर लें उनकी। जब उनकी डिलीवरी हो, उस बीमारी में हो, तो हमें खिदमत करनी चाहिए उनकी। उनके वालिदैन ने हमें सपोर्ट कर दिया है ना कि ये लो हमारी बेटी तुम्हारी बीवी है, तो बस प्राइमरीली वो मेरी बीवी है, उसके बाद उनकी बेटी है। ठीक है, बेटी तो है, लेकिन मेरी भी तो कुछ लगती है कि नहीं? रिस्पेक्ट इंडीड। मेरी आप लोगों की फीडबैक है भाइयों, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। रिस्पेक्ट, गिविंग हर रिस्पेक्ट, राइट? आप पे भी आएंगे इंशाल्लाह। आप कह रहे हैं यार हमारे हुकूक, राइट, हमारी तो कोई रिस्पेक्ट होती नहीं घर के अंदर। आप पे भी आएंगे, फिक्र नहीं करें। लेकिन यस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे की इज्जत करना, राइट? इट इज़ important that we respect each other, and that includes the way that we talk to them, the way that we deal with them, the way that we handle situations with mutual respect. It's basic human need, right? और human right। एक दूसरे की इज्जत करना, प्यार देना, मोहब्बत देना, टाइम,
ये किसने बताया था टाइम? याद है किसी को? टाइम किसने कहा था? आपने कहा था? एक दफ़ा मैं एक एहतिकाफ में था, और एहतिकाफ के बाद 1 साल बाद दोबारा एहतिकाफ में था। मेरे एक उस्ताद हैं, तो उस इस साल में मैं बहुत मसरूफ़ था। आप देखते हैं मैं ट्रैवल्स करता रहता हूँ इधर उधर आगे पीछे, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी थे। तो मैं अगले अगले एहतिकाफ में जब मैं गया तो मैंने अपने उस्ताद से कहा कि मैंने कहा 100 साल बाद मुलाकात हो रही थी उनसे, कैसा रहा, कैसे मतलब कैसे सब ठीक था? उन्होंने कहा जी बस इस साल तो बस आप क्या मैं आपको बताऊं, इतने मेरे सफ़र थे, कभी इधर कभी उधर, कभी ये कभी वो, और बिल्कुल बीवी के पास तो बैठने का वक्त ही नहीं मिला। तो मैं समझ रहा था वो कहेंगे बेटा शाबाश, वेल डन। उन्होंने इतनी ज़बरदस्त डांट पिलाई मुझे, उन्होंने कहा बीवी के पास नहीं बैठे, ये कैसे हो सकता है? कहते उसका हक है उसके पास उसको टाइम देना। जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी इस्लाह कर दी। मैं समझ रहा था बड़ा कोई कमाल किया, लेकिन बैलेंसिंग आउट एवरीथिंग, राइट, ऑफ कोर्स बैलेंसिंग आउट दिस एंड दैट बोथ। ये भी नहीं है कि उसके साथ ऐसे चिपक के बैठ जाए कि फिर और कोई एक खबर ही ना हो, ये भी नहीं वो भी नहीं, मिडल वे, राइट? So we have to be the middle way. We of course have to study, we have to teach, we have to do everything else, but not at the cost of not giving time to wives at all, right? They deserve time, they deserve that we sit with them. मेरे तो ख्याल में खाना तो इकट्ठे खाना चाहिए भाइयों, कम से कम। क्यों शाहिर? सीख रहे हो ना? तुम्हारी बीवी दुआएं देगी इंशाल्लाह मुझे कल, इंशाल्लाह अगर अमल करोगे, ठीक है? कहेगी आपको किसने सिखाया है ये सब कुछ, आप इतने अच्छे क्यों हैं? तो फिर कहन बताना, उन्हें कहना मेरे एक उस्ताद थे उन्होंने सिखाया था, ठीक है? प्रॉमिस, इंशाल्लाह। ठीक है भाइयों, वक्त दिया करें, खाना इकट्ठे खाया करें। अगर जल्दी आपके जालिम एम्प्लॉयर्स नहीं हैं तो चाय भी पी लिया करें उनसे। इनको देख के कह रहा हूँ, सुभान अल्लाह, कितना जुल्म होता है, right? So please have tea with them if you do get time. Have dinner with them if you do get time. Weekends, please do give them time. Education, indeed. Somebody said education. उनकी उनकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ का ख्याल रखना, ऑफ कोर्स एक बड़ी बेसिक ह्यूमन नीड है। सारी बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं। इंसान का दिमाग अगर जंग लग जाए तो वो बेचारा वो डिप्रेस हो जाता है। वी नीड टू कंटिन्यू लर्निंग, एंड वी आल्सो शुड प्रोवाइड देम सपोर्ट टू लर्न। जिनकी बीवियां पढ़ रही हैं एनयूआई में, मेरे भाइयों प्लीज़ उनको सपोर्ट करें, और सपोर्ट ही ना करें और उसके सपोर्ट भी करें, और इंशाल्लाह वो जो पढ़ रही हैं उसका अजर आप लोगों को भी जा रहा है, ठीक है? जो नहीं पढ़ रही अगले साल उनको दाखिला दिलवाएं इंशाल्लाह, ठीक? मार्केटिंग हो रही है एनयूआई की। When I got married, so at the very start of our marriage, uh, my wife got an email from somewhere that okay, there is an Arabic class for women that is going to start. So she did mashwara with me, what do you think? I said, wonderful, mashallah, zabardast. Why don't you start? And then she started going to the classes, and that turned into like a full weekend, extensive learning. So Saturday, Sunday, from early morning to evening, Saturday and Sunday both, शादी के नए नए दिन हैं, और 2 ही छुट्टियां होती हैं, हफ्ता इतवार। बाकी दिनों जो है वो मैं खुद देर से आता हूँ काम से, राइट? वीकडेज आई वुड कम लेट, वीकेंड संडे से, बट अल्हम्दुलिल्लाह what my teachers had taught me, my parents, that whatever that if you support a good thing, then the reward comes to you as well. So I thought, कि inshallah, if she studies, right, it's a sacrifice on my behalf that my wife is out on the weekend. But inshallah, if she studies and she does something good. We never thought that she's going to teach later on. Lekin the fact that she will act based on what she will learn, I will get the ajr of that as well. So this was in the back of my mind. So inshallah, whatever she teaches, I have a hope from Allah
कि whatever she teaches, it also goes to me because of my support to her in learning, in that learning process. तो सिर्फ वीकेंड पे, सॉरी वीकेंड पे एक वो जाती थी हफ्ता इतवार सारा दिन, नई नई शादी। तो मेरे यही था जहन में कि मैं अगर उनको सपोर्ट करूंगा तो जो भी वो अमल करेंगी तो उसका अजर मुझे भी मिलेगा। तो इंशाल्लाह ना सिर्फ वो जो अमल करती हैं और जो वो पढ़ाती हैं वो मुझे भी अजर मिलता है। एंड लाइकवाइज शी डिड द सेम टू मी एज वेल। Physical needs, somebody said, and especially, I mean, basically when you say physical needs, that includes sexual needs. ये बहुत बड़ा इशू है। हम उल्टी बात करते हैं। That there's a talk about that women not giving men time for their physical needs. लेकिन ये बहुत कम बात होती है कि men give time to women for their physical needs. बहुत कम बात होती है। ये मुझे अलार्म उस वक्त हुआ जबकि मुझे एक ईमेल आई, काफ़ी अरसा हो गया, 1-2 साल हो गए होंगे या ज़्यादा, शायद 1-2 साल। मुझे एक ईमेल आई किसी की तरफ से, किसी खातून की तरफ से, रैंडम, आई डोंट इवन नो हु दैट पर्सन वाज। उन्होंने कहा को कहती है, आई लिसन टू योर लेक्चर्स एंड यू स्पीक अबाउट ऑल ऑफ दिस मैरिज एंड स्टफ लाइक दैट, but I've never heard you saying that women also have physical needs and husbands should give them time as well. I go, wow, वाकई I did not speak about it much, शायद कभी इधर उधर थोड़ा बहुत। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ, उन्होंने कहा कि आपने कभी बात ही नहीं की कि बीवियों को मर्द टाइम नहीं देते फिजिकली। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात करें, क्योंकि जाहिर बात है मर्द होते हो आपको एहसास नहीं होता ना कि खवातीन की भी तो ज़रूरत होती है। तो इसलिए कभी चूंकि आप उस आप एक्सपीरियंस नहीं होता किसी चीज़ का, तो आप उसके बारे में फील नहीं करते। फिर मुझे एहसास हुआ, एंड दैट्स सो ट्रू, राइट, कि दे ऑल्सो हैव नीड्स। एंड if for example there is a man who thinks that he does not have enough physical needs, and you say, ठीक है, मेरी तो ज़रूरत ही नहीं, I will not go to my wife, but he does not think a wife might or still has needs, and she is shy enough to possibly not highlight that or mention that। समझ रहे हैं बात? कि मर्द की अगर ज़रूरत मिसाल के तौर पे कम हो जाए किसी वजह से, तो वो समझे जी मुझे तो ज़रूरत नहीं है, मैं बीवी के पास नहीं जाता, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि बीवी की भी तो ज़रूरत होती है। अगर वो इजहार नहीं करती अपनी शर्म हया की वजह से या वट एवर रीज़न की वजह से, तो कि मर्द ये सोचे ही ना, ये तो बड़ी अजीब बात। तो और सम मेन आर इम्पोर्टेंट, राइट, उनके अंदर कमज़ोरी आ जाती है मर्दाना और उसका इलाज ही नहीं कराते। और चूंकि ये हमारे माशरे में ख़ास तौर पे अंदर ये बात चूंकि बात नहीं होती, वो अंदर ही दबी रहती है और जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। ऐसे केसेस होते हैं जब मर्द अपनी बीवी के पास सालों नहीं गया और बेचारी औरत कुछ कहती नहीं है, क्योंकि माशरे में ये बात होती नहीं है, वो कर नहीं सकती, वो हाईलाइट नहीं कर सकती। किसको हाईलाइट करे? अपने अपनी माँ को। करती है कुछ, इसीलिए तो ये सरफेस पे आते हैं ऐसे इश्यूज। लेकिन अगर 100 है, 100 में से अगर 100 केस है, 100 में से मेरे ख्याल 10, 15, 20 आते होंगे, बाकी 80, 85 वो छुपे रहते हैं, right? There are men who are impotent, and these issues don't come to the surface because in our culture generally these issues are not spoken about. But there are men who do not, because they are physically incompetent, they do not go to their wives for years, and nobody gets to know. Illa mashallah, maybe 15%, 20% cases come to the surface, the rest don't. Please, ये जुल्म है मेरे भाइयों। ये उन मसाइल में से है जहाँ पे इस औरत को हक बनता है कि वो खुला का मुतालबा करे, वो अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करे। ये उसका हक है, क्योंकि एक बुनियादी चीज़ है ना, शादियों के बहुत सारे मकासद है, उसमें से एक बेसिक मकसद ये भी तो है, राइट। इट इज़ वन ऑफ द रीजंस वेयर इफ अ वुमन गोज टू द कोर्ट एंड सेज आई नीड डिवोर्स फ्रॉम दिस मैन, द जज विल आस्क द मैन टू get himself fixed, get treated, and if he does not, then the qadi can say, all right, divorce her then। तो प्लीज़ ऐसा ये भी जुल्म है माशरे में हो रहा है। जी जी।
जज़ाकुमुल्लाह खैरन फॉर साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दिस, स्पेशली द सेकंड इशू। दो बातें इन्होंने की है, राइट? ही सेड टू थिंग्स। वन इज दैट where the husbands stay away from their wives for years. I I find it oppressive, जुल्म है। उसके अंदर और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन इस वक्त चूंकि हम फिजिकल एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, तो यू नो मैन इज डिसाइडिंग टू नॉट बी विद हिज वाइफ फॉर इयर्स। सालों शौहर बीवी के पास नहीं जा रहा क्योंकि वो काम करने दूसरे मुल्क गया हुआ है। बहुत बड़ा जुल्म है यार, राइट? पता नहीं, आई डोंट नो कि कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज होती होंगी हस्बैंड वाइफ के दरमियान। सारी मतलब बीवी इजाज़त देती है, पैसे आ रहे हैं ना, पैसों की खातिर कुछ भी करें, लेकिन the thing is she really able to, or is he really able to remain modest or not? That's a question mark, right? कि वो दोनों अपनी हया की हिफाजत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये तो सवाल है। और ये वही जवाब दे सकते हैं जो इस तरह की सिचुएशन में है। लेकिन ऐसे केसेस डेफिनेटली होते हैं। मैंने बहुत जोर से कहा है क्योंकि मैं जानता हूं कि जहाँ पे जब शौहर और बीवी अलग नहीं होते, सॉरी साथ नहीं होते, अलग होते हैं, वहाँ पे शैतान दोनों में से किसी के पास भी आ सकता है और दोनों जिना का इर्तिकाब कर देते हैं, दोनों में से कोई या दोनों। आई नो सच केसेस where when husband and wife have not been together for months or for years, they do zina, either both or one of them, inclusive of women. कैसे पता चलती हैं ऐसी इश्यूज? ये पता चलते हैं जब वो ऐसे इश्यूज में होते हैं और सडनली उनके अंदर एक गिल्ट पैदा होती है, और वो मतलब वो उनको एहसास होता है कि ओ माय गॉड, ये तो हमने इतना बड़ा जुर्म कर लिया। और अब वो न, उनको पता नहीं होता कि तौबा से सब माफ़ हो जाता है, और वो एक अजीब से डिप्रेसिव स्टेट के अंदर चले जाते हैं। फिर वो कहीं हेल्प मांगने जाते हैं तो फिर सर्विस पे आती है ना ऐसी चीज़ें। लेकिन ऐसा होता है, राइट? इट इट डज हैपन व्हेन यू नो इवन जिना हैपेंस। मर्द तो ज़्यादा है इसमें शायद, आई डोंट नो, क्योंकि मर्दों ने, देयर आर मोर मैन हु हैव स्पोकन अबाउट दिस इशू देन वुमेन, बट देयर आर वुमेन एज वेल हु हैव स्पोकन अबाउट दिस इशू। तो लेकिन आई थिंक बिकॉज women talk less than men, maybe that's the only reason that there are less issues for women that are coming up to on the surface rather as compared to men. लेकिन हो सकता है women are the same as well, अल्लाह आलम, मुझे तो नहीं पता। लेकिन ये तो डेफिनेट है कि there are women who also get into this issue। और वो एक और इशू है कि जी वो अपनी बीवी को अपने वालिदैन के घर छोड़ आते हैं और वो उनकी उनकी खिदमत करती रहती हैं, और यहाँ पे मर्द साहब जो हैं वो पैसे कमा रहे हैं। ये एक दूसरा इशू है उसके साथ, राइट? देयर इज अनदर इशू दैट men have left their wives in the house, in the homes of their parents, his parents, and they are just serving them, and he is here for 2 years, 3 years। मतलब ये कैसी शादी है? Second thing which he Khurram sahab highlighted, and thank you so much for that, कि men do not care about their women reaching the climax of their sexual intimacy, because they reach it and they think it's done, dusted, over, and they don't even think that, you know, a woman also have to have her sexual intimate like climax। और उसको सोचते भी नहीं है कि जी औरत की भी तो जरूर, हम जरूरत की बात तो करें, लेकिन जरूरत के भी तो लेवल, चलो चल, दे हैड सेक्सुअल यानी इंटरकोर्स, लेकिन do women also reach their sexual intimacy or not, climax or not? बिल्कुल, बहुत जबरदस्त बात की है उन्होंने कि इस पे कितने मर्द सोचते हैं और फिर उसको कैसे एड्रेस करना है। क्योंकि ये तो पूरा एक टॉपिक है, इस टॉपिक पे डिटेल में चले जाएंगे, क्योंकि सम मेन हैव दिस व्हाट दे कॉल प्रीमेच्योर ejaculation, कि वो बिल्कुल बहुत जल्दी से उनकी वो क्लाइमेक्स रीच कर जाते हैं और खातून को वक्त लगता है। कोई भी बात नहीं करता ना इस बारे में, नो बडी टॉक्स अबाउट इट। उफ, बहुत बहुत ये बड़ा इशू है। मैं आप सोच रहा हूँ ना इसके बारे में, मैंने सोचा हुआ इस बारे में, लेकिन आपने हाईलाइट किया इसलिए मैं आपको बार बार थैंक यू कह रहा हूँ, बिकॉज दिस इज,
I do speak about men not going to the women, but I've hardly spoken about this particular thing. लेकिन बिल्कुल आपकी अब उसको कैसे एड्रेस करना ये हर बंदे का पर्सनल इशू है, लेकिन बिल्कुल ये एक समथिंग नीड्स टू बी एड्रेस्ड. अगर किसी का इशू है तो वो जाए डॉक्टर के पास जाए, किसी के पास प्राइवेटली आए, क्योंकि ऐसी बातें आप पब्लिक में बात करना बहुत खुल के जो है थोड़ा सा अजीब सा भी लगता है. लेकिन जिस जिसके साथ भी इशू है वो एड्रेस करे किसी तरीके से. दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड डेफिनेटली. थैंक यू. और ट्रस्ट फैक्टर, ऑफ कोर्स नीड टू ट्रस्ट, लेकिन वन ऑफ द रीजंस दैट पीपल हैव लॉस्ट ट्रस्ट इज बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट दैट वी आर लिविंग इन, राइट. अब ये मर्द इधर बैठे हैं और वो बैठ के दोस्तियां लगाई हुई हैं लड़कियों के साथ, या अपने घर में है उधर भी है, तो फिर बीवी का ट्रस्ट कहाँ रहेगा, और मर्दों का ट्रस्ट बीवियों पे कहाँ होगा जब उन्हें पता है कि वो बैठ के जो है ना कहीं उसने भी दोस्तियां लगाई हुई हैं. तो ट्रस्ट फैक्टर भी आज के ज़माने में बहुत हद कम हो गया. The trust factor has gone to its lowest levels in the times that we are living in because of internet age that we are living in. Again, I personally know. Just giving an example, subhanallah. A woman, a wife, had a doubt about her husband, okay, he is possibly into wrong things. So she checked his phone while he was resting or while he was in the bathroom and realized that he's chatting with a girl. वो खातून, she went to the extent of spying on her by hiring a spying agency. Subhanallah, and found out that he is going to the prostitutes. Oh, she was devastated, of course, right? उसने बाकायदा उसे जासूसी हायर किए, और उसको पता चला कि मेरा शौहर जो है वो प्रोस्टिट्यूट्स के पास जा रहा है. अब बेचारी टूट गई. एक दो तीन, और ये वाकया एक वाकया नहीं मैं बता रहा, ये मल्टीपल वाकया आता है. इसका मतलब ये कोई वन ऑफ केस नहीं है. क्या कहें इस खातून का, आप बताएं. कहते तो हम यही है, सब्र करो, जाने दो, ये करो, लेकिन अगर इफ यू स्टैंड एट हर प्लेस, आप उसकी औरत की जगह पे खड़े हो जाए, मेरा शौहर ये कर रहा है, तो क्या गुजरेगी मेरे ऊपर. क्यों कुंडी टूट जाएगी ना वो औरत, उसका दिल चाहेगा. देयर वुमेन हु से दैट आई डोंट वांट टू बी क्लोज टू दिस मैन, वो दूसरी औरतों के पास जाता है. ही गोज टू अदर वुमेन, आई डोंट वांट टू गेट क्लोज. कैसे समझाए इस औरत को. लेकिन हमने अपने बड़ों से सीखा है कि तलाक आखिरी चीज होती है, तलाक नहीं करानी, तलाक नहीं करानी, विच इज राइट एब्सोल्युटली. लेकिन मैं उस औरत के जगह पे अगर अपने आप को खड़ा करके देखूं, तो मैं कैसे, जरा सोचे. लेट्स टॉक अबाउट दिस. माशाल्लाह, somebody's wife goes to other men, what will we do? क्यों भाई, क्या करेंगे. लेट्स assume थोड़ी देर के लिए, very bad assumption, assume फौरन ऐसे, right, right away men will divorce. हाँ, वो तो मैं उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता, लेकिन यस यू आर राइट, राइट. बीवी तो बहुत बड़ी चीज होती है, बेटियों पे लोग कर देते हैं. बीवी तो बीवी होती है, राइट, बीवी है. तो व्हाट दिस वुमन, इस औरत का क्या दिल पे गुजरती है, होगी, गुजरती है, जब उनका शौहर जो है औरतों के पास जा रहे हैं. हार्ट ब्रेकिंग स्टोरीज होती है ना. यू हैव नो आंसर. You say be patient, but when you think about it, right? Thinking कि आप उसकी जगह पे you put yourself in her place, it's not easy to be patient. And when they say I don't want to be close to my husband, they are absolutely right. 100% दुरुस्त बात कर रही है वो खवातीन कि मैं शौहर के पास नहीं जाना चाहती, नहीं रहना चाहती उसके. And there are women as well, सुभान अल्लाह. जैसे मैंने कहा खवातीन, एक मर्द, एक बंदा मेरे पास आया, कहता कि I doubt that my wife is having affairs with a man. I said, doubt is a doubt. Why you're doubting? Oh, एक BBC. उस बंदे ने क्या किया, सुभान अल्लाह. What he did was, पता नहीं, वो याद भी नहीं है, like कुछ साल हो गए. This man put like a secret hidden camera in his house and then realized, मुझे जहाँ तक याद पड़ा है, I'm not 100% sure,
Or what he did was, I think, yes, what he did was he went to the building next door, the opposite building, and he requested the security guard to get the footage of the CCTV cameras. And then he saw that his wife, while he was in the office, his wife is coming out and going with another man coming, going, sitting in the car and going. Eventually ended up in divorce. यहाँ तो तलाक होगी फोन ऐसे. इतना जुल्म है भाइयों, क्या करो, अल्फाज नहीं होते. You don't have words to talk about these issues, but they are real issues. क्या कौन सा ट्रस्ट यार. बीवी है, शौहर है, अल्लाह देख रहे हैं. अल्लाह इज लुकिंग, right? Allah knows what's going in the hearts. That thought of a girl that crosses any man's mind, Allah knows that thought. अल्लाह को उस ख्याल का पता है जो किसी मर्द के जहन में किसी लड़की का गुजरेगा. जब कोई लड़की यहाँ से गुजरेगी बगैर कपड़ों के और कोई बंदा उसको देख के उसके दिल में जो वो सोचेगा, जो देख रहा है, अल्लाह को उस ख्याल का पता है. अल्लाह knows that thought that crosses anybody's mind. And we think, nobody knows. Allah knows, right? And if that turns into an action, they are responsible. If they think their wives don't know, Allah knows. कब्र भी है, आखिरत भी है, क़यामत का दिन भी है, जन्नत भी है, जहन्नम भी है. Right? Grave is coming. The day of judgment is coming. Jannat exists. Jahannam exists. All is haq. We need to read Quran. मेरे भाइयों, they are serious matters. And plus, we have married them in the name of Allah. Allah के नाम पे किया है ना शादी. We need to trust each other. But be those people that we can trust each other. इसीलिए तो मैं एक मर्द शौहर मेरे पास आया, मेरी बीवी ऐसी, मेरी बीवी ऐसी, मेरी बीवी ये करती है, ऊंचा बोलती है, ये करती है, वो करती है, मैं उसे तलाक देने लगा. मैंने कहा सिर्फ ऊंचा बोलती है, ये इशू है. जी जी जी. मैंने कहा देखो, पर्दा करती है, वो नेक औरत है, वो नमाजें पढ़ती है. मैंने उसे कहा तुम्हें कोई ट्रस्ट इश्यूज है? नहीं नहीं, ट्रस्ट इश्यूज तो कोई नहीं है, बड़ी नेक है. मैंने कहा अल्लाह के बंदे, क्या ये काफी नहीं है? क्या ये काफी नहीं है? Is that or not enough? That she is a loyal woman. She covers herself up. She stays away from all of these pathetic things going on in the society. Is that not enough? फिर उसे समझ में आई, कल में आई उसके बाद. लेकिन trust is a huge thing. Spiritual needs, of course, right? हर बंदे की एक रूहानी जरूरत होती है, उसको प्रोवाइड करनी चाहिए. We should give them time. खास तौर पे when they're small kids, when we go back home, as I've said before, we should just give them time. बच्चे मैं संभालता हूँ, आप जाएं, आप नमाज पढ़ें, आराम से अपनी तिलावत करें, दुआएं मांगें, अपने आप को वक्त दें, अपने नाखून काटें, अपने नहाएं धोएं, जो मर्जी करें. It's your time, okay? It's your time. Helping in household chores, of course, is सुन्नत है मेरे भाइयों. डायपर्स भी चेंज करें बच्चों के. You should change the diaper of the kids as well, right? Consultation, take mashwara from them. Indeed, whoever said that, उनसे बात करें, right? Take mashwara from them. Respect her family. Yeah, we expect them that they respect ours, so we should respect theirs. आपने बात छेड़ दी, दिल इतना टूट गया, बात ही नहीं करने को दिल चाह रहा आगे. सीरियसली मैं डाउन हो गया इस तरह. आपकी वाइफ आपकी अम्मी को क्या कहती है? हाँ, अम्मी. मैं नहीं पूछता कि आप उनकी अम्मी को क्या कहते हैं, लेकिन वो है आंटी. वो क्यों नहीं अम्मी भाई? है ना? अगर वो, इफ आई एक्सपेक्ट दैट शी कॉल माय मदर मदर, सो आई शुड कॉल हर मदर मदर. वो भी तो अम्मी है. फिर जो रिश्ता उनका मेरी वालदा से, वही रिश्ता एग्जैक्टली हु बहु वही रिश्ता मेरा उनकी वालदा से, एग्जैक्टली डिट्टो, राइट? नो डिफरेंस. क्यों मौलाना? ऐसे ही ना. वो चाची फूफी क्यों है जब मेरी वालदा उनकी अम्मी, वो अम्मी कह रही है, या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अम्मी कह रही है, या तो वो भी कह रही है खाला, तो मैं कहूँ खाला, चले ठीक है, लाइक फॉर लाइक. लेकिन अगर वो कह रही है, मैं कह रहा हूँ जी अम्मी कहें, तो फिर उनको भी अम्मी कहना चाहिए. Respect their family, exactly the way that I want that they respect mine, I should respect theirs. And it is very important, by the way. Privacy, वो हम बात कर चुके हैं. Privacy in terms of the place that they live in and all of that, हम बात कर चुके हैं.
right expectations according to Sharia. Exactly. क्या एक्सपेक्टेशन हम पहले बात कर चुके हैं गालिबन। खाना बनाना, कपड़े धोना, इस्त्री करना, जूते पॉलिश करना, घर की सफाई करना, ये उनकी दयानतन जिम्मेदारी है, ना कि कदा। ये हमने बात की थी ना, दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देम बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, not like technically. It's not a technical responsibility for them. So, they have the right expectations, and if they cook food for us, we should say thank you. कपड़े इस्त्री कर दें, thank you, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, right? उनको अप्रिशिएट करें मेरे भाइयों। सही एक्सपेक्टेशन हो, मेरे वालिदैन की खिदमत उनकी जिम्मेदारी नहीं है। मेरे वालिदैन की खिदमत उनकी जिम्मेदारी नहीं है। मेरे वालिदैन की खिदमत उनकी जिम्मेदारी साथ नहीं है। अगर वो करती है तो क्या कहें? जज़ाकुमुल्लाह खैरन, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, नवाजिश, करम, मेहरबानी, जो भी अल्फाज। ठीक, सीरियसली, it's not their responsibility to serve my parents. If she does that, thank you very much. जज़ाक, उनको अप्रिशिएट भी करना, ये भी ह्यूमन नेचर है। मैं ना एक्सपेक्ट करूं शुक्रिया कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ख्याल भी ना आए कि कोई मुझे आके कहे थैंक यू फॉर टीचिंग, should not even cross my mind. But then we should go to our teachers and say thank you for doing what you have done for us. यही है ना शरीयत। मन लम यशकुर नास लम यशकुर अल्लाह। Who does not thank people has not thanked Allah. जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। लेकिन कुरान क्या कहता है कि नेक लोगों के, अच्छे लोगों के बारे में, कि इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। मैं तो अल्लाह के लिए खिलाया, ना मुझे थैंक यू चाहिए, ना शुक्रिया चाहिए, ना जज़ा चाहिए। आई डोंट नीड एनीथिंग बैक। आई फेड यू फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। So this is the balance, right? So we should appreciate them. Thank you very much. गाए बगाए उनका शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। My mother-in-law has been very critically ill for past 3-4 weeks. I've been in the hospital as well. We've been uh, I think taking turns. So when they discharged her from the hospital, so my wife said, "Thank you for taking care. Thank you for taking care of my mother. आपने मेरी वालदा का ख्याल रखा। थैंक यू।" ये उनकी तरफ से अच्छाई थी, उनको बिल्कुल कहने की जरूरत नहीं थी। मेरा जवाब था, मेरी भी तो अम्मी है। Why thank you? Thank you for what? But this is the balance. हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। थैंक यू। एंटरटेनमेंट क्या करें? हॉलीवुड देखे जाके? हाँ, पार्क लेके जाए। कौन सा? अल्लाह करे ना पहुंचे के बाद। चलें, कह रहे तो अच्छा था, जुरासिक पार्क लेके जाना। Exactly, take them to parks, take them outside. Right? Especially, if they cover up and they stay in the house, they deserve to go out. उनका हक बनता है उनको बाहर लेके जाया जाए, राइट? इनको किसी, अगर अल्लाह ने आपको पैसे दिए हैं तो उनको वेकेशन पे लेके जाएं कहीं, राइट? कहीं इधर उधर, मुल्क के अंदर, मुल्क से बाहर, व्हाटएवर। उनको वंस इन अ वाइल खाने पे ले जाएं बाहर। ये अच्छी बातें हैं मौलवी साहब। अस्तगफिरुल्लाह। उनको गिव देम अ ब्रेक। खाना पका पका के थक जाती हैं, उनको कभी खाने पे ले जाएं भाइयों। कभी पैसे खर्च कर लिया करें, बखील लोगों। अपने आप से मुखातिब हूँ मैं। सबसे पहले अपने आप से मुखातिब हूँ ना, बखील इनसे। हाँ, बहुत, आपको नहीं पता कैसे कैसे शहजादे बैठे होते हैं। हर तरह के लोग होते हैं ना। आप अपने ऊपर क्यास कर रहे हैं सब।
मैं उनसे कह रहा हूँ जो बुखल करते हैं बखालत ना दिखाएं, राइट? वी शुड स्पेंड ऑन आवर वाइफ्स, वी ऑलरेडी स्पेंड, यू नो, वी शुड टेक देम आउट। ऑफ कोर्स नॉट एट अ प्लेस वेयर जस्ट एब्सोल्युटली हर चीज़ हराम है, शराबें बिक रही हैं, ऐसी चीज़ें नहीं, लेकिन टू अ डिसेंट प्लेस, टेक देम आउट at times, and of course definitely entertain them with, you know, some good entertainment, take them out if you can। हर बंदे की सिचुएशन डिफरेंट होती है, लेकिन करना चाहिए। केयरिंग फॉर हर चिल्ड्रन, राइट? पता नहीं क्यों क्यों लिखा था हमने, लेकिन इट कुड बी, है ना, you're somebody getting married to a woman who already have children from her previous marriage, ये भी तो होता है। लेकिन of course I'm caring for our children, right? महर की बात हो गई, ठीक। सॉरी फॉर टेकिंग सो मच टाइम मौलाना। नेक्स्ट टाइम ये जो स्लाइड्स है ना, इनको इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। आई विल बी ट्रैवलिंग होपफुली, मोस्ट लाइकली, इंशाल्लाह। ठीक। कोई सवाल भाई हो किसी को, और आखिरी लास्ट मोमेंट कि चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, किसी को कोई सवाल? जी सर। बहुत अच्छी बात की, पूरा टॉपिक है, एक पूरा टॉपिक है हाउ टू डिवोर्स इन केस डिवोर्स इज अ मस्ट। First thing first, we need to understand that divorce is the most hated thing in the sight of Allah from the permissible things। अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हलाल की हैं उसमें से सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ अल्लाह को तलाक लगती है। तो वी शुड ट्राई टू somehow manage, लेकिन इफ़ इन केस it it ends up in a divorce, then there are etiquettes of divorce। मेरे जो शेख के शेख हैं, उनको उन्होंने अपनी एक वाइफ को तलाक दी, उनको घर खुद छोड़ के आए, उनको जोड़ा दिया तोहफे में, मेरी तरफ से ये आपको तोहफा है। और फिर बहुत इज्जत इकराम से वहाँ पहुँचा के फिर उनको जब सेटल हो गई वहाँ उनको डिवोर्स दी, और फिर तशरीफ लेके आए। कहने को तो खैर डिवोर्स ही क्यों दी, डिवोर्स हो सकती है, तलाक की नौबत आ सकती है ना, कभी नहीं रह सकते, अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है, लेकिन सबसे आखिरी चीज़ होती है, और को बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, लेकिन यू आर एब्सोल्युटली राइट। इट्स अ होल टॉपिक एज टू हाउ अ डिवोर्स शुड बी गिवन इन अ प्रॉपर वे। वी ऑलरेडी मेंशन वन थिंग कि जी वो जेवर वापस करो। आप उसको अगर तोहफा दिया है तो उसका हो गया ना, कैसे वापस मांग सकते हैं? इंशाल्लाह विल डिस्कस दैट एज वेल। जी सर। फ्रॉम एंटरटेनमेंट, जी। मैसेज टीवी वाले तो नहीं क्लिप रिकॉर्ड करके डालते नहीं। देखें, इसीलिए ना मैं इनको इनको यहाँ बिठाता हूँ, हजरात को, कि ये मुझे पकड़ लें यहाँ से अगर मैं कोई गलत बात करूँ तो। सीरियसली मैं इनको बार बार कहता हूँ, मेरी कोई अपनी गलती की निशानदेही कर दिया करें प्लीज़। देखिए, इन द मेरा मेरा ज़ाती ख्याल है, अब इस्लाह का मैं तलबगार हूँ। मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि हम जिस एनवायरनमेंट पे रहते हैं ना, ये चीज़ें एक नॉइज़ बन चुकी हैं, एक शोर है, गाड़ियों का जैसे शोर है। इसी तरीके से अगर कोई बैकग्राउंड म्यूजिक, यार ये हमारे कॉरिडोर में लगा रहता है, मैं को रोजाना उनसे, मैं हर दूसरे दिन से कंप्लेंट करता हूँ, यार इसको कम करो हमारे अंदर। और फिर वो क्या, ओ सॉरी 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 सॉरी, वो हमारी फायर मैनेजमेंट ने कहा है कि जी लगाना ही लगाना है। मैंने फिर उन्होंने ये 3 स्पीकर्स डिस्कनेक्ट किए हैं, ये फिर भी इतना ऊंचा लगा होता है कि फिर भी आवाज़ कभी आ रही होती है। कहने का मकसद ये हमारे नॉइज़ बन चुकी है, अब नॉइज़ को तो नॉइज़ के तौर पे डील करना चाहिए, राइट? मैं जब रेस्टोरेंट जाता हूँ अपनी फैमिली को लेके,
तो अगर ऊंची म्यूजिक लगी होती है, मैं जाके ज़रूर कहता हूँ यार इसको कम कर दो। और मैं वाकई में बिला मुबालगा मेरे सर में दर्द होता है ऊंची म्यूजिक से। बिला मुबालगा मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है लिटरली। तो मुझे कहते हैं इसको कम कर दो, मेरे सर में दर्द होता है हमेशा, हर जगह जहाँ पे भी, और वो कर देता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको ऐसे ही डील करना चाहिए, नॉइस के तौर पे डील करना चाहिए, मेरा ज़ाती ख्याल। ठीक है। किसको? Sorry, I just say it in English. The question was, how should we deal with music if we go to the restaurants? So I said that I take it as noise, right? And we should try to lower it down, but if possible, should request them. But let's take it as noise. It has become part of our environment, unfortunately, of course. जी, trust, हाँ, trust. नाश्ते का कोई मूड नहीं लग रहा। हाँ हाँ, ये भी एक टॉपिक है, इसको इंशाल्लाह ये टॉपिक और ये टॉपिक मिला के किसी वक्त बात करेंगे। अहम बात है, सारी बात है। एक बात उनसे कह दूं, इसको मायूब नहीं समझना चाहिए। एग्जैक्टली, हाँ, लेकिन फिर उसके लिए कैसे, क्या करना, क्या, कैसे, क्या, वो एक डिटेल डिस्कशन है। लेकिन मायूब ऐब तो नहीं है ना। ऐब का जब इसको मायूब, किसी शरई चीज को मायूब कह देंगे ना, ये बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा। हाँ, कल्चर गलत है ना। लेकिन इट नीड्स सम डिस्कशन, इंशाल्लाह विल टॉक अबाउट इट। ठीक, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।